pleasure to introduce today's speaker, Dr. Jagdeep Kumar Sharma. Dr. Sharma, popularly known as JK in his official and friend circles, was born and brought up in a small town, Taran Taran in Punjab. He completed his graduation from GNDU Amritsar and holds a degree in Garments Technology from Amritsar. He did his master's degree from Annamalai University and PhD from ISB of International University of America. Dr. Jagdeep Kumar Sharma has over 35 years of professional experience in the central government and the state governments of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He has worked with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India for more than 10 years. In 2003, he started his private sector job and worked for various prestigious education groups of Punjab like CGC Landra, Rayat and Bara, IIT Badal Technical Campus, Shreyans Group and Baddi Infrastructure as Director Principal. His last tenure was with IIT Ropar as Chief Operating Officer with their Technology Business Incubator for 3.5 years. He joined CT University as Director Research, Industry Interface and Innovation in July 2021. He is Co-Chairman, Education Committee of PhD Chamber of Commerce and Industries Punjab, Convener of IPFC Steering Committee of PhD CCI, Executive Member of the FICCI's North India Education Committee, Charter Member of TIE Chandigarh Chapter, Coordinator of Institutional Innovation Council Cell, IIT Ropar, Member of IIC for Slight Longowal, PEC Chandigarh and Punjabi University Patiala. He is also the Industry Connect Coordinator of CT University. Additionally, Dr. Jagdeep Kumar Sharma is a member of Rotary International since 2009 and is currently working as the Chairman Rotary Public Image, Executive Member of the District Swimming Association Roopnagar, Executive Member Bharat Vikas Council and Roopnagar Culture Society. We are honored to have you amongst us, sir. And faculty को मैं कभी भी चाहे मेरा चैम्बर हो, चाहे मेरा ऑफिस हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, मैं नहीं चाहता कि फैकल्टी को 1 मिनट से ज़्यादा भी वेट करवाया जाए। सो एक बार फिर माफ़ी चाहूँगा। हम लोग आज के लेक्चर की बात करते हैं, थोड़ा सा ऑडियंस का जो टेस्ट है या जो इनपुट है, नॉलेज है, उसके ऊपर एक बार बात करेंगे। जो टॉपिक है TRL वाला, वो मुझे लगता है अगर हम लोग डॉक्टरी की भाषा में बात करें तो MD/MS वाला है। सो ऑडियंस का टेस्ट अगर पता हो, ऑडियंस का थोड़ा सा नॉलेज अगर पता हो, तो फिर उसको थोड़ा सा मैच, पिच और फिक्स करना आसान हो जाता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कितना नॉलेज है सर? बैठ के प्लीज। Entrepreneurship is becoming a producer, creating stuff and innovating. Trying to create new products. क्योंकि कॉमर्स का कॉलेज है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज, मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा तो यहाँ बड़े वास्ट तरीके से निकलनी चाहिए। Any other कोई रिफाइन करें इसको? Yes ma'am. So starting something by someone like kind of innovation, trying to innovate something new in the market or which is not already in the existence. Okay, that will be startup. Yeah. Startup. Okay, चलिए, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। स्टार्टअप सर ने जैसे कहा बड़ा बज़वर्ड है आजकल, हर दूसरे मिनट हमको सुनने को मिलता है। What is startup? Which is less than Bringing 5 up years new old, idea in the market. 10-year-old, and which is वो something. तो आप टेक्निकल भाषा से बता रहे हैं ना। स्टार्टअप कोई भी बिजनेस, Sir, I think. अगर आज के दिन में आपके मोहल्ले में कोई एक बंदा जो है वो सिर्फ 10,000 15,000 रुपए की जो एक बूटस्ट्रैपिंग है, बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं अपने जेब से पैसे लेना या अपने किसी रिश्तेदार से लेना, और वो लेके वो सिंपली एक दूध का ठेला भी लगा देता है, दैट इज स्टार्टअप। उसको हम ये नहीं कह सकते दूध वाला, वो भी स्टार्टअप है, क्योंकि जैसे वो उस फील्ड में आएगा उसके बाद फिर वो कन्फेक्शनिंग पे आएगा, फिर वो एक अच्छा बूथ लेगा, फिर वो शॉप की तरफ जाएगा। सो दिस एवरी न्यू वर्क being started is also called a startup. So we have covered entrepreneurship, we have covered startup page, वो startup ecosystem, startup benefits, उसके ऊपर जो हैं वो रखे हुए हैं। More than 1,500 crore rupees जो बजट है वो सीधे का सीधा एक डिपार्टमेंट को जो है वो दिया गया है, एंड गवर्नमेंट मतलब के खुले हाथों से लौटाने को तैयार है, आप लेने वाले बनो। अब उनका जो कॉल है, जो कंसर्न है, वो है प्रॉपर ट्रांसपेरेंट डिलीवरी, गुड एक्सीलेंट हैंड होल्डिंग एंड स्टेट ऑफ द आर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपके इंस्टीट्यूट में है। मैं डॉक्टर साहब से अभी आते आते 2 मिनट हमारी बात हुई,
एंड मुझे हैरानी है कि अभी तक हमने इंक्यूबेटर जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश क्यों नहीं किया। एंड गवर्नमेंट इसके लिए 5 करोड़ रुपया सीधे सीधे निधि TBI प्रोग्राम के तहत ITBI, अभी इस साल वो और रिवाइज हो गया है और वो ITBI के लिए जो वो ग्रांट दे रही है। आज अगर आपका इंस्टीट्यूट अप्लाई करेगा, जो जून में कॉल आने वाली है, तो आपको मिल जाएगा। मेरी यूनिवर्सिटी ने पिछले साल मेरे ज्वाइन करने से पहले अप्लाई किया था, उनको दिसंबर की कॉल में नहीं मिला। मैं इस बार भी री अप्लाई करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अब उस चीज से आप ये समझ लीजिए कि आपके इंस्टीट्यूट का जो स्टैट्यूट है वो क्या है, क्योंकि वो मांगते क्वालिटी, यू हैव स्टार प्लस रेटिंग, ये चीज वो चीज। लेकिन इसके साथ साथ अप्लाई करने से पहले जो हमको रेडीनेस लेवल चाहिए, अब मैं उसी पे आ जाऊंगा जो TR वाला है, जो रेडीनेस लेवल चाहिए वो क्या है कि हमको अपने यहाँ एक स्टार्टअप इकोसिस्टम, एक एटमॉस्फेयर वो बनाना है। अब मुझे लगता है ये हाउ यू रोल दिस IIC इस साल ही बनी है तो 4 साल पुरानी है। हाँ, वी आर रीएक्टिवेटिंग। एंड स्टार रेटिंग कितना है? 1. So we are reinventing everything. Actually, we were doing lot of things. अब मैं आपको यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग का खेल भी समझाऊंगा। मैंने अभी आपको ये बताया कि आपका कॉलेज इस साल अप्लाई करेगा, इसी साल मिल जाएगा। मेरे यूनिवर्सिटी ने जो कि 4 साल पुरानी है, लास्ट ईयर अप्लाई किया था, दिसंबर में मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। अब की बार फिर अप्लाई करेंगे, फिर नहीं मिलेगा। मैं अभी एडवांस में कह रहा हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, बट उसका रीजन क्या है कि हमारे पास वो एलोकेट्स, हमारे पास वो क्रेडेंशियल्स वो 4 साल वाली यूनिवर्सिटी के पास नहीं है जो आपके पास है। लेकिन जब अप्लाई करेंगे तो उससे पहले वो थोड़ी सी सक्सेस स्टोरीज जो है वो गवर्नमेंट जो है वो जरूर देखती है। एंड पर्टिकुलरली जो DST है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो इसके ऊपर जरूर निकाल देती है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम है क्या, इंस्टीट्यूट में कितना है। एंड आज की डेट में हम TBI कहते तो हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, लेकिन अगर हमारे थ्रस्ट एरिया में, जब IIT रोपड़ में था, वहां पर भी अगर हमारे 5 थ्रस्ट एरियाज जो थे, IT ITS, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड क्लीन एनर्जी, क्लीन टेक, राइट। बट मेरे यहाँ 50% से ज्यादा जो आइडिया थे वो ई-कॉमर्स साइट से आते थे। I took this proposal to my director Dr. Sarit Das कि अगर हम इन्हीं थ्रस्ट एरियाज के ऊपर फंसे रहेंगे तो हमारे पास सफिशिएंट एप्लीकेशन आएंगे नहीं और स्टार्टअप कंपनीज आएंगी नहीं और इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाए। So then board decided कि नहीं, you please throw away these thrust areas and जो applications आती है आप उसको invite करिए। And with this permission, within 1 month, 1.5 month, we were having more than 27 or 28 applications from the IITians, क्योंकि पहले 3 महीने हमने किसी को अलाउ ही नहीं किया। So आपके यहाँ अगर ये इकोसिस्टम डेवलप होता है, and I assure my fully help sir, दिन रात यहाँ काम बैठ के करना पड़े, इट्स नो प्रॉब्लम, बट एक इकोसिस्टम डेवलप आप करिए। आप उसमें अभी कम से कम 3 तरह की जो ग्रांट है वो ऐसे गवर्नमेंट थाली में लेके परोस के घूम रही, पर्टिकुलरली ITBI के लिए। अब जो रिवर्स इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा था वो क्या है, जो इकोसिस्टम डेवलप करने वाली बात है। एक आर्या रैंकिंग के बारे में सुना किसी ने? आर्या ये IIC की बहन ही है, इसकी बड़ी बहन। अगर हम इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल कहते हैं तो देयर इज वन आर्या टर्म, अटल रैंकिंग ऑन इंस्टीट्यूशन अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेटिव एक्टिविटीज। सो इट स्टार्टेड इन 2020। यूनिवर्सिटी ने उसको बड़े तेजी तरारी से लिया, क्योंकि हमारे पास अभी तक 34 पेटेंट जो हैं वो हमारी फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने फाइल कर चुके हैं, 32 ग्रांट हो चुके हैं, 5 डिजाइन पेटेंट अलाउ हो चुके हैं। एंड लुधियाना की इंडस्ट्री अब हमारे 4 इनोवेटर्स के पीछे पीछे घूम रही है कि हम उनकी TRL जो टेक्नोलॉजी है वो उनको ट्रांसफर करें, बिकॉज वी आर इन द हब ऑफ द इंडस्ट्री, दैट इज इन लुधियाना। यूनिवर्सिटी वहां से सिर्फ 28-29 किलोमीटर दूर है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग वाली मैं बात जो कर रहा था पहले, जैसे मैंने कहा कि हम आप भी अप्लाई करेंगे नहीं मिलेगा, आज आप अप्लाई कर देंगे मिल जाएगा। लेकिन मेरे यहाँ जो आर्या रैंकिंग में पिछले साल 2021 में जब 557 इंस्टीट्यूशन ने उसके लिए फाइट किया तो मेरी यूनिवर्सिटी का रैंक 50th आया। बहुत अच्छा रैंक था, ताली बजाई, पीठ भी थपथपाई। अब की बार की रैंकिंग में 1550 या 1551 इंस्टीट्यूट लाइन में आ गए, तो हमको डर था, कंफर्म डर था कि हम लोग पिछड़ेंगे, क्योंकि कहां पर 500 कहां पर 1500, तो हमको ये डर था।
लेकिन फिर भी मैंने ज्वाइन किया जुलाई में और हमने पूरे जोर शिद्दत के साथ जुनून के साथ काम किया। रात रात भर बैठ के मैंने अपने इनोवेटर्स में जो उनके मॉडल्स बनाए, प्रोटोटाइप बनाए, एक्टिविटीज़ कराई। एक दिन में 3-3 सेशंस कराए, जैसे आज ये अपनी टॉक हो रही है। कैलेंडर एक्टिविटी कराई, इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी कराई, बाहर से स्पीकर्स को बुलाया, अपने इनोवेटर्स को बुलाया। तो 3 महीने 4 महीने के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जाते ही कैसे हो जाता है, वो ये शिद्दत है सर, वो शिद्दत, वो खुद साथ में जो है वो लगना पड़ता है। एंड मुझे याद है कि मैं वहाँ 6-6:30 बजे गेस्ट हाउस में जाके फिर अपना ट्रैक सूट डाल के आ जाता था। एंड आई आल्सो सिट विद माई इंक्यूबिटीज टिल 12-1 AM इन द मॉर्निंग आफ्टर वियरिंग माई ट्रैक सूट, कि नहीं ये तो करना है, ये हमको इतने POC तो फाइल करने हैं, इतने पेटेंट तो आपकी बार फाइल करने हैं, लगना है। एंड इस साल की रैंकिंग में आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि 1550 इंस्टीट्यूट जब लाइन में थे तो हमारा रैंक 30th हो। सो इट हैज इम्प्रूव्ड। एंड 30th रैंक भी जो है वो बैंड परफॉर्मर में जो न्यू इंस्टीट्यूट्स हैं उस कैटेगरी में आया है। हमारे से ऊपर चिटकारा है, LPU है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, कुछ नहीं है, ये पुराने लोग हैं। लेकिन इन 10 साल वाले पुराने इंस्टीट्यूट को अगर एक 4 साल वाली यूनिवर्सिटी अगर टक्कर दे रही है तो इसका मतलब सिस्टम इंटैक्ट। सो हमको अपने यहाँ जो है एक बढ़िया सा एटमॉस्फेयर जो उसके लिए बनाना है, और जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब कुछ है, मुझे लगता नहीं है कि हम यहाँ पर 3 से 6 महीने से ज़्यादा के टाइम में वो पूरा इकोसिस्टम जो है वो डेवलप कर पाएंगे। सो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, स्टार्टअप हो गया, इंक्यूबेटर। एनीवन नो अबाउट इंक्यूबेटर? Incubation is a name given to the process where an individual or an organization supports the establishment and growth of a startup. अब ये एक लाइन पढ़ने के बाद हम इसके एक अगली स्लाइड में जब जाएंगे, ये कुछ पिक्चर में आपको नजर आ रहा है? Have you seen such pictures there? एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर एक इंक्यूबेटर वार्ड होती है जो कि न्यू बॉर्न बेबीज के लिए होती है, राइट? अगर आप पहली फोटो को देखेंगे, पॉइंटर होगा पॉइंटर नहीं, अगर हम पहली पिक को देखेंगे तो उसमें उसका पूरा प्रिंसिपल समझाया गया है। अगर हम दूसरी को देखेंगे तो ये इंक्यूबेटर की एग्जैक्ट इमेज है जिसमें एक प्री मैच्योर बेबी जो है वो लेटा हुआ है, और उसकी सर्वाइवल के लिए डॉक्टर्स और ये जो सिस्टम है, जो इंक्यूबेटर है, वो हर एफर्ट करता है। दिस इज आल्सो वन ऑफ इमेज एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ इमेज। अब ये प्री मैच्योर बेबी जो है, ये डॉक्टर्स और जो इंक्यूबेटर सिस्टम है वो करते हैं, हर वो हीला, हर वो कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे इस प्री मैच्योर बच्चे को बचाया जा सके। बहुत ज्यादा कि हर वो एफर्ट किया जाता है कि जिससे इस बच्चे को बचाया जा सके, क्योंकि वो प्री मैच्योर है। उसको वही माँ के वॉर्म वाला टेम्परेचर दिया जाता है, उसको वही वो लाइट दी जाती है, उसको वही उस एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। और इन द सेम वे अगर हम ये बात करें इसको, तो ये इंक्यूबेटर समझ आ गया, क्योंकि जब ये इंक्यूबेटर और प्रोसेस समझ आ जाएगा तो फिर TRL पे आप दौड़ेंगे। सो नाउ incubator is a name given to the process where an individual or an organization support the establishment and growth of a startup. कोई भी एक नया ज्वाइन, those supporting the startup or new companies are called business incubators. अब incubators भी 3-4 तरह के हो गए। These business incubators see the growth potential and weigh the opportunity before supporting or funneling funds into any startup. The selection of a startup involves in a high-level research before any decision is taken to support or fund a startup. In a nutshell, we can say the goal of incubation is to increase the success chances of business. Incubators are ultimately helping to the raw, the new, बिल्कुल नए जो ideas हैं उनको incubate करना। जैसे उस incubator में हर वो effort किया जाता है कि वो बच्चा जो है वो survive करे, उसको बचाया जा सके। सेम वे जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर और जो इंक्यूबेटर है वो उन आइडियाज को बचाने की, उनको नर्चर करने की, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो अब इंक्यूबेटर का क्लियर हो गया। मैं इसको अपने शब्दों में कहता हूँ, जब मैं अपने इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, पंजाब में, चंडीगढ़ में, इस एरिया में कॉमन है कि नए दामाद की सेवा बड़ी होती है ना। नया दामाद आता है उसके लिए नया बेड, नई चद्दर, नया तकिया
और घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा वो नई चप्पल भी ला के देगा। सो इसको पंजाबी में कहते हैं दमादा दी सेवा बहुत होती है कि नहीं होती है? In the same way this government is taking care of the startups. कंपटीशन सपोर्ट चाहिए दी, ज्यादा लोन चाहिए दिया, क्या चाहिए? So every effort is being made by the government through incubators so that the newly created ideas are generated to the POC, proof of concept level, to the prototyping and to the TRL. अब यहाँ TRL जाके समझ आएगा। So TRL technology ready level means कि पहले वो एक raw idea था, उसको हमने technical mentorship देके seed grant देके, अच्छा seed grant शब्द सुना कभी? Seed सुना? किसने सुना है? Yes please. So I have listened this in Shark Tank that it is some kind of मार दिए Shark Tank को। सब पासवर्ड हो। हम लोग अभी 3 महीने नेक्स्ट मंथ हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में शुरू कर रहे हैं द सेम टाइम लाइन एंड वो शार्क टैंक जो है वो सीड नहीं दे रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट है। विक्रम जी मुझे 100 रुपया दे रहे हैं लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि जिस दिन भाई तुम्हारा धंधा चल गया इसमें 10 रुपए मेरे हैं, इनके पास फिर पड़े हैं। अब मैं निगोशिएट करूंगा 10 नहीं 5 दूंगा, ये कहेंगे अच्छा मैं 75 रुपए दूंगा, बाद निगोशिएशन टेबल पे आएगी। दैट इज ए इन्वेस्टमेंट, दैट इज इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से समझा। सो एक नया आइडिया आया, उसको वैल्यूएट किया, उसका पीओसी बनाया, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाया, जीरो फेज में उसको डेवलपमेंट अर्ली स्टेज डेवलपमेंट में लेके आए, पीओ से फिर उसकी इवैल्यूएशन कराई, फिर उसका प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप मींस चलता फिरता मॉडल उसके तरह का। वो वर्किंग तो नहीं है बट वर्किंग लाइक है, वो वैसा तो नहीं है लेकिन दिखता वैसा, ताकि उसको वैल्यूएटर, इन्वेस्टर और इंडस्ट्री उसको समझ आए कि हाँ ये चीज ऐसे बनने वाली है। एंड प्रोटोटाइप आने के बाद फिर उसका एक फाइनल, उसको बोलते हैं हम लोग एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, वो बनेगा। और थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन टीआरएल में आज हम देखेंगे कि 9 लेवल होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी भी साथ जुड़ी हुई है, जिसमें आरएनडी भी साथ जुड़ी हुई है, उसमें डेवलपमेंट उसकी फुल फेज के साथ जुड़ी हुई है। एंड कस्टमर से पहले इंडस्ट्री को उसकी रेडीनेस समझ आ रही। इन्होंने मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, नया इंडस्ट्री के पास गए, इंडस्ट्री जल्दी से तो हाथ में रखने देगी, उसमें ये नुक्सा है, इसमें ये नुक्सा, आप इसको ऐसे करो ऐसे करो। सो वो उन लेवल्स में से निकलते हुए टीआरएल लेवल जो है वो 9 तक जाता है। एंड 9 में वो बिल्कुल पूरा कंप्लीट है जो कि कस्टमर के हाथ में आने। ये वैसा ही है जैसे सैमसंग या आईफोन वाले अपना हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद नया फोन निकालते हैं। उनको कस्टमर की कमजोरी पता चल गई। आईफोन 5 भी आया था एक स्टेज में, गैलेक्सी सीरीज भी आई थी सैमसंग की, अभी नोट आने शुरू हो गए हैं, अब S22 कोई कल मैंने एक ऐड आई थी उसमें ऐड हो रहा है। एंड हमारे पास परचेजिंग पावर है, कंपनीज को ये पता है, वो नए मॉडल लॉन्च करेंगे। यहाँ कितने लोग हैं ऑनेस्टली बताइए जो 1 साल बाद अपना मोबाइल चेंज करें? अरे मैं इनकम टैक्स वालों को नहीं बताऊँ, काफी है ना, हैं कहीं तो 6 महीने बाद। माय डॉटर शी इज वर्किंग इन दिस यूटी सेक्टर चंडीगढ़, 2 साल बाद, ये अभी S12 पुराना हो गया। मैंने कहा क्या उसमें नए फीचर है? मैं क्या फीचर है भाई? क्या उसमें से आप दूध डालेंगे तो चाय बन के निकल आएगी? क्या होगा? बात ही होगी नहीं। उसकी कैमरा क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा कितनी फोटोज आप खींचते हैं? बस नहीं आप बूढ़े हो गए हैं, आपको इस जमाने का पता नहीं है, आप हमारे साथ नहीं चल सकते हैं, मुझको लेना है। अच्छा मैंने पूछा, मैंने कहा पुराना कितने का जाएगा? वो उसने शायद 65,000 का लिया था। that shopkeeper is very generous। मैं कहा क्यों? he is giving me 35,000 back। वो very good, 1 साल के अंदर 30,000 का घाटा और आप उसको जेनरस कहते हैं। सो कंपनीज को पता है, हमारी कमजोरी पता है, इसलिए वो डे बाय डे नया मॉडल लेके आते हैं, तो उसी तरीके से चलता है। अब इंक्यूबेशन के बाद स्टेजेस ऑफ इंक्यूबेशन, इसमें स्टेजेस है। प्री इंक्यूबेशन है, प्री इंक्यूबेशन मींस मैंने सर ने हम 2 लोगों ने मिलकर एक आइडिया इंक्यूबेटर को सबमिट किया, उनके एक्सपर्ट्स की टीम ने उसको वैल्यूएट किया, अपनी कुछ इनपुट्स दी,
इंक्यूबेशन अलाउ किया, उसको प्री इंक्यूबेशन हम कहते हैं, वो अलाउ किया और अलाउ करने के बाद उसको कोवर्किंग स्पेस दे दी, कंप्यूटेशनल स्पेस दे दी, तो दैट इज कॉल्ड प्री इंक्यूबेशन। उसके बाद आती है अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज मीन्स, अच्छा इसमें क्लासिक इंक्यूबेशन में हम कर सकते हैं क्लासिक इंक्यूबेशन, मगर ये स्टेज ऐसे घूमेंगे इस तरीके से। सो अर्ली स्टेज में आप देखेंगे कि उसको थोड़ा सा पैसा मिला, सीड ग्रांट मिली, उसने उसको आइडिया को डेवलप किया, फिर उसको क्लासिक इंक्यूबेशन मिली। क्लासिक इंक्यूबेशन उसको इंडस्ट्री कनेक्ट मिल गया, उसको प्रोटोटाइप डेवलप करने की जो है वो हेल्प जो है वो मिल गई, उसने पीओसी बना दिया, एंड उसके बाद आ जाती ग्रेजुएशन। जैसे हम लोग यहाँ 10+2 के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं, इसी तरीके से जो स्टार्टअप है उसका भी एक ग्रेजुएट पीरियड है, उसको कहते हैं कि स्टार्टअप जो है वो ग्रेजुएट हो गया और वो 3 साल का टाइम उसको लगता है। इसको मिनिमम 3 साल का टाइम हम लोग मान सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योर थ्रू इंक्यूबेशन, अब पहला शब्द जो हमारा आया था एंटरप्रेन्योर थ्रू इंक्यूबेशन। अब इंक्यूबेटर डायनामिक प्रोसेस बिजनेस डेवलपमेंट करने का, बाजार में कोई भी आपको बिजनेस करने की तरबियत नहीं देगा। घर वाले तो कह देंगे इतना पैसा लगा, दोस्त ये कह देंगे इस मार्केट से परचेज कर सस्ता मिलेगा, लेकिन वो पिता पुरखी या जो रेगुलर बिजनेस चलता आ रहा है वो वाला। लेकिन जहां एक स्टार्टअप ने नया आइडिया एक बना के उसको पीओसी, उसको आगे तक लेवल लेके जाना है, उसकी इमदाद, उसकी हेल्प केवल इंक्यूबेटर ही कर सकता है, और मार्केट में, यूनिवर्सिटीज में, दुनिया में कोई भी जगह उसके लिए अवेलेबल नहीं है। सो इससे आप इंक्यूबेटर का जो रोल है या जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो अच्छी तरीके से समझ सकते। सो इंक्यूबेटर्स यंग नर्चर यंग फॉर्म्स हेल्पिंग देम टू सर्वाइव इन देयर अर्ली स्टेज। उनको अर्ली स्टेज में सर्वाइव करने के लिए कहते हैं। दूसरा कोई हम बिजनेस करें, घाटा पड़ गया, माँ बाप कहाँ और पैसा नहीं देंगे भाई, इसी से काम चला। बट इंक्यूबेटर्स दे हेल्प। वो डेड लेवल तक भी अगर इंक्यूबिटी जाता है, स्टार्टअप जाता है, तो उसको पिच करते हैं, तेरी प्रॉब्लम क्या है, टीम प्रॉब्लम है, ठीक है तेरी टीम चेंज करते हैं, तेरे को टेक्निकल मेंटरशिप चाहिए, ओके। ये इंक्यूबेटर जो मैनेजर है वो देखता है कि ऐसा कंसेप्ट कहाँ बन रहा है, उसको उस इंडस्ट्री से कनेक्ट कराते हैं। सो दे मेक ऑल एफर्ट्स, एज आई टोल्ड, हर वो एफर्ट करते हैं। सो इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ऑफिस स्पेस, मीटिंग रूम, प्लेटफॉर्म टू डू नेटवर्किंग, मैनेजमेंट असिस्टेंस, अदर सपोर्ट सर्विसेज स्पेसिफिक टू इंक्यूबेटर, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक। अब इंक्यूबेटर्स की हम बात करें 3 तरह। नंबर 1 सिंपली इंक्यूबेटर। अब सिंपली इंक्यूबेटर में क्या होगा, जैसे ये रूम है, एक कोने पे एक मैनेजर का या एक एग्जीक्यूटिव का जो ऑफिस है वो है, बाकी सब जगह पे जैसे कंप्यूटर लैब होती है वो लगी हुई है, और हमने उस पर अपना आइडिया डेवलप किया, चाहे वो वेब से रिलेटेड है चाहे दूसरे रिलेटेड है। दिस इज कॉल्ड सिंपली इंक्यूबेटर। फिर आ जाएगा बिजनेस इंक्यूबेटर, उसमें आपको 2-3 फैसिलिटी और मिल जाएंगी, कॉन्फ्रेंस रूम की फैसिलिटी, मीटिंग रूम की फैसिलिटी, इंडस्ट्री कनेक्ट मिल जाएगा आपको, एंटरप्रेन्योरियल जो कनेक्ट है वो मिल जाएगा। तीसरे आ जाते हैं टेक्नोलॉजी बिजनेस। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर में प्योरली टेक्नोलॉजी की बात है। वहाँ जो आइडियाज आते हैं उनका थ्रस्ट एरिया डिफाइन हो जाता है, उस थ्रस्ट एरियाज के बेस पे ही जो है वो मेंटर्स अलॉट होते हैं, उस थ्रस्ट एरिया के बेस के ऊपर ही आपको टेक्निकल मेंटरशिप मिलती है, आपको इंडस्ट्री कनेक्ट मिलता है, और आपका प्रोडक्ट जब डेवलप होता है तो फिर वैलिड इंडस्ट्री से कनेक्ट कर दिया। आप जाएंगे, अभी एक कंपनी है योबोशु प्राइवेट लिमिटेड, राइट, इट्स ओनली 3-year-old कंपनी, मैक्सिमम 3-year कंपनी, इट इज फ्रॉम IIT रोपर। हैट्स टू दैट लड़की शिवांशी वर्मा, she joined when IIT रोपर in the very first year she made up her mind कि उसको बिजनेस ही करना, उसको स्टार्टअप ही करना है। तो मेरे पास पहला जब आइडिया आया तो मैंने अपने डीन को पूछा, मैंने कहा लड़की है, क्या करना है, क्या करना है भाई, बाद में इंटरेस्ट लूज ना हो जाए। तो उसने कहा नहीं, कहता आपका क्या ख्याल है, मैंने कहा चांस देना चाहिए। नाउ 3 सेपरेट अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस क्या थे, एक तो लड़की, कोई बात नहीं, was doing the mechanical degree, लड़की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रही है, और पहले साल से ही जो स्टार्टअप कर रही है वो हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन पे कर रही है। कोई जुड़ाव है आपस में? इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में से भी उस लड़की ने और उसके पार्टनर ने, बिजनेस पार्टनर ने 2 साल 4 महीने के अंदर अभी रिसेंटली 2.5 करोड़ रुपए की मोहाली की एक फर्म से फर्स्ट राउंड फंडिंग ली। एक और कंपनी यही मैटर करती है,
एक और कंपनी जो कि RFID है, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी इनोवेशन डिवाइसेस बनाती है. इट इज द फर्स्ट कंपनी ऑफ इंडिया. दो स्टूडेंट्स आर इन देयर 4th ईयर डिग्री प्रोग्राम, IIT रोपड़ में हैं. आप नेट पे डाल के देखेंगे, अमित भाटी और मिस्टर राठी उसका नाम है उनके दोनों पार्टनर्स का. एंड मैं अगर रिसेंटली उनकी मैं आपको डेवलपमेंट करूं तो आपको बताऊं तो आप सुन के हैरान हो गए. कैंपस में रहते हुए उन्होंने 35 लाख रुपए की अपने लिए C क्लास मर्सिडीज खरीद के लाई. सोच सकते हैं हम लोग? मैं पिछले 35 साल से कमा रहा हूं. मैं आज भी जो विटारा ब्रीजा या बहुत छलांग मार लूंगा तो और एक आधी कोई गाड़ी हैचबैक ले लूंगा, नहीं तो वो SUV ले लूंगा. उनका पहले 2 साल का जो टर्नओवर है वो 9 करोड़ 75 लाख. अभी भी इस साल भी वो जुलाई तक जो है वो 4th ईयर में पढ़ रहे हैं. एंड दे आर द फर्स्ट इंडियन कंपनी हु विल बी मेकिंग द रेडियो फ्रीक्वेंसी एफिशिएंट डिवाइसेस, RFID टेक्नोलॉजी. चाइना के ऊपर हमारी जो डिपेंडेबिलिटी है वो खत्म करने है. इस साल मार्च के बाद वो 1000 करोड़ का जो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो टेंडर है वो भरने जा रहे हैं. अभी हम लोग टोल प्लाजा पे जाते हैं, लाइन में लगना पड़ता है. वो 10 किलोमीटर तक उनकी जो डिवाइस है वो जिस टोल पे लगी होगी वो 10 किलोमीटर बाद जो है उसको उसका लेके सेंस करके नीचे कमांड दे देगी आपको. वो जो बूम बैरियर है वो खुला होगा. सो दे आर गोइंग टू पिच एज ए स्टार्टअप कंपनी the 1000 rupees crore standard of national highway. तो हम लोग नहीं कर सकते. कोई उनको 3 साल के लिए इनकम टैक्स पे नहीं करना है, उनको अपनी GST रिटर्न फाइल करनी है, उनको अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन से जो है अपने डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को, लेबर डिपार्टमेंट को एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को देने हैं और अपना काम चलाना है. कितनी सारी सहूलतें हैं. जब तक आप एक कंसेक्टिव ईयर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर नहीं ले जाते हैं तब तक आप स्टार्टअप के फ्रेमवर्क, स्टार्टअप की परिभाषा में ही रहेंगे. तो कितनी सारी फैसिलिटीज हैं. यहां से कोई बिजनेस फैमिली में है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सोचा है कि हमको 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है. वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो जॉब लेके नहीं बन सकती, वो एंटरप्रेन्योरशिप से ही बन सकती है. only and only way to get this 5 trillion economy is to adopt the entrepreneurship. इसीलिए कोई भी डिपार्टमेंट, either it is DST, either it is MIT, either it is BIRAC, either it is Ministry of Agriculture, either it is Ministry of Railway, they are providing huge support to the new idea. हमारे स्टूडेंट्स अभी एक सेंसर प्लस उसके साथ एक डिवाइस, मैं फुली डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि अंदर वो अभी वो पेटेंट परव्यू में है, उसको ऐसे हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं. अगर रेलवे लाइन 4 इंच से ज्यादा वो टूटी हुई होगी एंड गाड़ी के पलटने की इम्तिकान रहेगा, यानी कि उसका खदशा रहेगा, तो ड्राइवर को 10 किलोमीटर पहले से ही रेड सिग्नल मिल जाएगा. वो सेंसर लगा है कहां पर? ट्रेन के अंदर. कल मैं अपने इंस्टीट्यूट में 5 आइडियाज को एवेलुएट करने वाला हूं. लास्ट वीक हमने एक आइडिया एवेलुएट किया है. लुधियाना के अंदर उसका पायलट हो चुका है. अब वो क्या है? अभी आपके यहाँ वो ओला उबर चलती है, 2 मिनट के अंदर हमने देखा 10 गाड़ियां बाहर आ जाएंगी. अभी आपने यहाँ से सेक्टर 17 जाना हो, इलांटे जाना हो, सबसे पहले क्या तकलीफ आएगी? पार्किंग आएगी. सोचेंगे. हमारे 2 स्टूडेंट्स ने डिवाइस तैयार की है. घर से चलते ही वो ऐप के ऊपर देखेंगे कि उन्होंने सेक्टर 17 में जाना है, पार्किंग स्पेस कहाँ है. एक पार्किंग स्पेस मिली, उनकी गाड़ी के हिसाब से वो ठीक है, उन्होंने बुक की ऑनलाइन, वहीं से जैसे मोबाइल से हम पेमेंट पे करते हैं, पे कर दिया, उतनी देर के लिए वो पार्किंग स्पेस उनके लिए रिजर्व है. ये लुधियाना में हमारी टीम 2 लड़कियां हैं, एक लड़की है, 2 लड़के जो हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स लैब के, वो इसका पायलट करते हैं. हमने वेब मॉल में वहाँ इसका पायलट कर दिया है. सो कहाँ से आते हैं ऐसी खुराफाती आई? ये यही जनरेशन है जो मेरे सामने बैठी है. ये मेरे वाली और विक्रम जी वाली और इनके वाली नहीं है, ये आप लोग हैं. एंड फ्यूचर इज वेरी ब्राइट.
व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम योर प्लेसमेंट सेल, एक जॉब, बस यही ना। एक जॉब का मतलब क्या है? ऐसे एक जॉब, अल्लाह के नाम पे एक जॉब दे दे, खुदा के नाम पे एक जॉब दे दे। तो व्हाई वी आर मेकिंग दिस हैंड लाइक दिस, टू टर्न दिस हैंड इनटू लाइक दिस। यही हाथ अगर आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो ये 4 लोगों और को जॉब देने वाला बन। So actually we have a class. Can you please go? We have a class. कितने दिन, कितना मिनट और दे सकते हैं? 10 मिनट। So it has already started. It was at 3 o'clock. चलिए वो आपके कोऑर्डिनेटर डिसाइड कर लेते हैं। मेरे सामने तो 2 भी लोग बैठे होंगे, मैं अपना भाषण पूरा करके जाऊंगा। Send me the They have invited name me of your from teacher, that. write on one piece of paper and give it to me. So ये पीढ़ी मेरे सामने बैठी हुई है, जिनके सामने ये आइडियाज हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की हमने बात कर ली। एक टर्म आजकल बड़ी चल रही है, आपने पेपर में पढ़ी होगी, आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, वो इंस्टाग्राम पे बड़ा आ रहा है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सुना है कभी? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? अब एंटरप्रेन्योरशिप में भी सोशल हो गया, क्या है क्या? व्हाट इज द नीड ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? सबसे ज्यादा जरूरत ही सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की है, सबसे ज्यादा आइडिया ही यहाँ से निकल रहा है। आपके कॉलेज की ही अगर कोई ऐसी समस्या है जो मैनेजमेंट को नहीं पता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपने जो है वो आइडेंटिफाई कर ली और आपके पास उसका सोल्यूशन भी है, यही एक स्टार्टअप का जन्म है। और इसी को हम लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ले सकते हैं। आपका मोहल्ला है, उसके अंदर एक पार्किंग की समस्या आती है, आपने उसको जो है म्युनिसिपल कमेटी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, उनको दिया, वो ठीक हो गया। दिस इज द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ सोसाइटी की प्रॉब्लम जो है वो इम्प्रूव की जाती है। एंड सबसे ज्यादा अभी इसमें जो स्कोप है, अगर हम 100% की बात करें तो मोर देन 67%, 68% जो कैप्चरिंग है वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ने कर दी है। टेक्नोलॉजी दूसरी चीज, वो तो उसके साथ बाद में आती है, लेकिन इनके अंदर से जो आइडिया है वो ज्यादा है इसमें। सो वी हैव अपडेटेड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, वी हैव अपडेटेड ऑन इंक्यूबेशन, वी हैव अपडेटेड ऑन स्टार्टअप। स्टार्टअप के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए, क्योंकि फिर आप TRL को ऐसे समझें, जैसे अगर किसी ने न्यूटन का पहला लॉ, दूसरा लॉ पढ़ लिया तो तीसरा तो फिर एवरी रिएक्शन एंड एक्शन इक्वल एंड अपोजिट तो याद हो जाता है, a² + b² + 2ab + ब्ला 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 ब्ला, ऐसा ही होता है। सो इन टर्म्स को पहले समझना जरूरी था, क्योंकि ऑडियंस है ना, अब मोदी जी जो है वो आके अगर सीधे ही कश्मीर की बात करना शुरू करेंगे तो सुनेगा ही नहीं, राइट? वो पहले आते भाइयों और बहनों इस तरह से, राइट? तो आदमी कंफर्ट जोन। आज मॉर्निंग में मेरे यहाँ 250 स्टूडेंट्स जो हैं वो 10th क्लास के, उन्होंने यूनिवर्सिटी विजिट करनी थी। सो आई वाज आस्क्ड, आप डॉक्टर साहब इनको आपने एक प्रेजेंटेशन देनी है यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में। आई सेड ओके। सो आई सेंड द आइटिनरी टू माय वाइस चांसलर। अब उसमें पहले लिखा हुआ था 8 मिनट्स वीडियो ऑफ टॉम एंड जेरी। मेरे वाइस चांसलर की स्टूडेंट का फोन आया, सर 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 पूछ रहे हैं ये टॉम एंड जेरी क्यों दिखाना है? मैंने कहा मेरी मर्जी। नहीं सर वो पूछ रहे हैं क्यों दिखाना है? मैंने कहा भी ये वहां जाके देखेंगे ना। अच्छा, वाइस चांसलर को मगर ब्रीफ मैंने किया, जब मैंने कहा सर बच्चों को पहले उस माहौल में लाना पड़ता है। अब 10 बजे मेरे सामने वो पूरे आए तो मैंने कहा हेलो क्या हाल है? ऑल वेल जी। कहाँ से आए? यहाँ से आए, यहाँ से। छोटे छोटे बच्चे ना, 10th क्लास का बच्चा बता रहे, ओके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो, अच्छा तुम्हारी टाई अच्छी है, ठीक है गुड। तो कंफर्ट जोन में आ गए। अच्छा यार तुम लोग कार्टून वार्टून देखते हो? हाँ सर हाँ देखते हैं। कौन सा? शिनचैन। मैं कहा सॉरी, नो चाइनीज प्रोडक्ट विल बी, नो चाइनीज प्रोडक्ट विल बी डन। अब वो डर गए भाई, इसका मतलब एक तो आपने दिखाना भी है और आपने चाइना के विरुद्ध जो प्रति अपना विरोध है वो भी दर्ज करा दिया। ओके ठीक है, तो और कोई कौन सा देखते हो? सर एक वो चाचा चौधरी है। अच्छा मैंने कहा वो चूहा बिल्ली वाला, हाँ हाँ सर टॉम एंड जेरी होता है। टॉम एंड जेरी देखोगे? यस सर। 8 मिनट के लिए वीडियो लगाई, वो हंस रहे हैं, कुर्सियों से हिल रहे हैं। वो टॉम एंड जेरी वाली जो थी वो मोटिवेशनल वीडियो थी, उसको मैं बिल्कुल पढ़ाई के साथ मैंने जोड़ना था। अब मेरे वाइस चांसलर पीछे आके बैठे। आफ्टर 10th मिनट जब वो वीडियो खत्म हुई, ही केम टू मी एंड आस्क्ड फॉर 1 मिनट, आगे से जितनी प्रेजेंटेशन होगी डॉक्टर साहब आप ही दें। तो मैंने कहा ये तो मैं पंगे में फंस गया।
सो अब क्या हुआ कि अगले 30 मिनट्स के लिए वो स्टूडेंट मेरे कंफर्ट जोन में आ गए। मैंने जो उनको परोसा, जो अपने कॉलेज के बारे में बताया, जो उनको इंक्यूबेशन, उनको रोबोटिक्स लैब के बारे में बताया, जो उनको +2 के बारे में बताया, जो उनको IBM प्रोग्राम, दे अडॉप्टेड। अपने पैसे से बात करते हैं, इसको टेक्निकल भाषा में, एंटरप्रेन्योर की भाषा में, बिजनेस इंक्यूबेटर की भाषा में बूटस्ट्रैपिंग है। क्या कहते हैं? बूटस्ट्रैपिंग। अपना पैसा लगाया, रिश्तेदारों से, अपनी सेविंग से लगाया। फंडिंग सोर्सेज इंक्लूड फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड फंडिंग द लोन। वेंचर कैपिटलिस्ट, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो आप समझ सकते होंगे, जो किसी वेंचर में कैपिटल लगाते हैं। बट पहली जो हमारे पास वो आती है फैमिली एंड फ्रेंड्स। बात कैसे आती है? उनका कंपनी कॉर्पोरेशन, उनका कंपनी फॉर्मेशन, वो LLP रहेगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रहेगी, वो सोल प्रॉपर्टीशिप रहेगी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगी, 4 पार्टनर वाली रहेगी, शेयर होल्डिंग कितनी होगी, ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब टर्म्स तो आप समझते हैं ना कॉमर्स वाले, राइट? सो ये सब चीजें उनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो जो कंपनी सेक्रेटरी है वो समझाता है। सो उनको उसका लीगल स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए। स्टार्टअप कम विद हाई रिस्क एज फेलियर is very possible, but they can also be very unique place on work with great benefits if focus on innovation. एक high risk as failure. नेट पे पढ़ा कभी किसी ने हिंदुस्तान में कितने % स्टार्टअप फेल होते हैं? पढ़ा करो, मुझे लगता है ये उस तरह की क्लास ही पहली हो रही है ना, क्यों सर? है ना? 97%, बहुत थोड़े हैं ना। अगर एक दिन में हिंदुस्तान में 100 आइडियाज आते हैं तो उनमें से 97 जो है वो फेल होके गड्ढे में चले जाते हैं। तो फिर आप कहेंगे सर फिर आप इतना भाषणबाजी क्यों दे रहे हैं, क्यों इतना स्टार्टअप को वो कर रहे हैं? बट इसके साथ ही 15 अगस्त 2016 को जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार इस टर्म को अनाउंस किया लाल किले से, स्टार्टअप वर्ड को, आज 6 साल अभी नहीं हुए हैं, तो हम लोग उस समय शायद 100वें नंबर पे भी नहीं थे, क्योंकि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका तो नाम ही नहीं हो सकता ना। तो जब हमारे यहाँ स्टार्टअप टर्म ही नहीं थी तो कहाँ हम दुनिया की गिनती में आते? तो हम कहीं 100 नंबर पे भी रहे होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, होंगे ही नहीं शायद। बट विद इन 5.5 years टाइम, 6.5 years टाइम, वी आर नाउ इन द 3rd इन द वर्ल्ड। हमारे पहले सिर्फ अमेरिका और चाइना। अब इससे आप ग्रोथ का अंदाजा लगा लीजिए कि 6 साल के अंदर अगर हम 100 नंबर पे भी नहीं थे, आज पूरी दुनिया में हम 30 नंबर के ऊपर हैं। एंड सिस्टम कितना जो है वो एडवांस, एंड गवर्नमेंट इतना पुश कर रही है, मगर जबरदस्ती, जैसे ये मेरे सामने बैठे हैं, इनका गला पकड़ के, नहीं तू कर स्टार्टअप। इनको साल का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए दिया जाता है। Whatsoever system you want to establish, do it. मैं IIT रोपड़ में जाने से पहले 60 लाख रुपए का ऐसे ही 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में जो इंटीरियर डिजाइन है वो कर 1,70,00,000 रुपए के इक्विपमेंट्स लेके आए। मोर देन उस 1,70,00,000 में जो इक्विपमेंट है वो थ्रस्ट एरिया के इक्विपमेंट्स। सरफेस देखा आप लोगों ने? सरफेस माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था, मेरी औकात भी नहीं थी कि मैं 1.5 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का जो हुआ वो ले सकूं। गवर्नमेंट ने दिया मुझे। सो वो टर्म क्लियर होगी ना? एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड टू हेल्प द स्टार्टअप्स। सो दिस इज वन ऑफ द गोल्डन से भी ऊपर अगर कोई है नाम तो आप वो उसको टर्मिनाइज कर सकते हैं कि ये पीरियड है अपना बिजनेस, अपना वेंचर शुरू करने का। रिस्क कोई नहीं, सीड ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है, चल गया तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर थले थले, है ना? मुझे पता था यही शब्द है, उसमें थले थले नहीं है, उसमें बल्ले बल्ले ही है, क्योंकि आपकी हैंड होल्डिंग, एक शब्द आता है हैंड होल्डिंग, डॉक्टर साहब ने भी यूज किया था। हैंड होल्डिंग बड़ी जबरदस्त है, वो मरने नहीं देते हैं, किसी भी तरीके से सरवाइव करते हैं, उसको सरवाइव करवाते हैं। So this is the golden period for the people, those who are thinking to do entrepreneurship, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, एंड वो किसी भी स्टेज में वर्क कर सकते हैं। IIT बॉम्बे में अभी रिसेंटली 78-year-old लेडी, उसने अपना आइडिया पिच किया है, एंड अभी 15 दिन पहले उसने प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली इंटरेक्ट किया है,
एंड उसको पहले फेज की जो फंडिंग है 1 करोड़ रुपए की मिली। एज कितनी है? 78। वो सब्जी लगाती थी, वहीं से उसने कुछ आइडिया निकाला, उसको पिच किया एंड एक IIT का प्रोफेसर उसकी दुकान से सब्जी लेता था। ही मेक द हैंड होल्डिंग, दिस इज कॉल्ड हैंड होल्डिंग। वो अपने इंक्यूबेटर में लेके गए उनको, उनका आइडिया, वो अनपढ़ है बिल्कुल। मेरे यहाँ पिछले वीक अभी एक आइडिया आया है, 1 लीटर डीजल में 30 घंटे बिजली बन सकती है। मेरे पास आदमी है, 1 महीना 2 महीना मुझे दे दीजिए, पूरा आपके सामने उसकी वीडियो भेजूंगा। उसका आइडिया आ चुका है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप, मिस्त्री है, इज ए ये जो पिंडा जेड़े इंजन होंगे बिजली पैदा करने वाले, पानी कटने वाले, वो इंजन का मिस्त्री है। एंड टू द माई अटर सरप्राइज, जो उसका कंसेप्ट है, जो उसका आइडिया है, वो 46 कंट्रीज में इंटरनेशनली पेटेंट प्रोटेक्टेड। 46 कंट्रीज में। 2 साल वो बंदा किसी वजह से एक्सीडेंट की वजह से वो कोमा में चला गया, वो अपने उसको नहीं ले जा सका। माई MD वॉज पासिंग थ्रू जलंधर टू कपूरथला, तो उसने उसकी दुकान पे जब कुछ पंचर या कुछ ऐसी कुछ चीज़ लगाई, तो उसने कहा जी ये आप कैसे बना रहे हो? उसने ऐसे बताया, तो माई MD कॉल मी, शर्मा साहब ये एक ऐसी चीज़ है, मैं इसको अभी गाड़ी में बुला के भेज रहा हूँ। ही सेम डे केम टू माई इंक्यूबेटर, वी हैव इंक्यूबेटेड, उसका आइडिया हमने जो वैल्यूएट करा दिया है, एंड वो फ्लाई व्हील से एक बार 1 लीटर तेल डाला, फ्लाई व्हील टेक्नोलॉजी से 1 घंटे में 1 लीटर में 30 घंटे बिजली जनरेट करे। इट इज गोइंग टू मेक ए बज इन द वर्ल्ड। ऐसे ही आइडिया है। ये जो ओला उबर, आपको पता है कहाँ के लड़के हैं? चंडीगढ़ के। जुगनू कहाँ का? जुगनू का नाम सुना? कौन है जुगनू? वो जो टिमटिमाता है, ऑटो वाला। कहाँ गया वो लड़का? ही इज फ्रॉम योर गुड सिटी डियर। चंडीगढ़ से इस समय कम से कम भी 16-17 जो आइडियाज हैं वो दुनिया भर में तहलका मचा रहे हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड मुनीश जौहर, ही इज ए टाई चार्टर मेंबर। आज कल एक वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे एक लिस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट की जो है वो डिस्क्लोज हुई है, एंड उसमें वो 16वें नंबर पे 146 करोड़ रुपए अभी तक वो इन्वेस्ट कर चुका है। हाउ मच? 146। बैठे बैठे खा रहे हैं। 10 कंपनियों में पैसा लगा दिया, 3% इक्विटी भी है। फिर वो शार्क टैंक वाली बात आ गई ना, 3% इक्विटी है, बैठे बैठे खा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 3% इक्विटी है, बैक भी ले रहे हैं, रॉयल्टी भी ले रहे हैं, आपको बैठे बैठे लग गया। आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ था, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, आपने बेचा, मकान किराए पे चढ़ा के और प्रॉपर्टीज बना के क्या किया? लड़ाई झगड़ा मोल। 10 किराएदारों को देंगे, 8 तो फड्डे वाले होंगे ही ना, या 2 तो फड्डे वाले होंगे ही। सो इन दिस वे दिस वर्ल्ड now the beautiful atmosphere for that. Clear? चारों टर्म्स क्लियर हैं? किसी को कोई शक है तो फिर आगे बढ़े। एंटरप्रेन्योरशिप पे, स्टार्टअप पे, इंक्यूबेशन के ऊपर। स्टार्टअप इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ही बना दिया है इसको देखने के लिए। इसके बेनिफिट जाते हैं 6 महीने के अंदर आपकी ब्रेक हो जाती है। इट इज सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट एंटिटी, नॉन प्रॉफिट कंपनी खोली, 2 डायरेक्टर बनाए, 10,000 स्क्वायर फीट एरिया स्पेस जो है वो एलोकेट कराया, एंड आइडियाज को वैल्यूएट करना शुरू कर दिया। एक ब्रॉडकास्ट मेल मारी अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टी को, 1 क्लिक के अंदर 3600 3650 लोगों को मेल गई। कुछ का आया, समझा, बैनर्स लगाए, उनको किया। एक स्कूल के अंदर जाके अपने डीन को मैंने पकड़ के कि तुम अपने बच्चे बिठाओ मेरे सामने, जितने बच्चे हैं मुझे एक ही बार में इनको लेक्चर देना है आधे घंटे का। लॉ वाले भी, फार्मास्यूटिकल वाले भी, एग्रीकल्चर वाले भी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के भी, इंजीनियरिंग के भी, आपका ये इसके इनोवेशन एंड डिजाइन के भी। मेरी 15 दिन की उस एक्सरसाइज में आई रिसीव 116 एप्लीकेशन, 116 एप्लीकेशन। बच्चों के पास रॉ आइडियाज भी थे। मगर एक बच्चे ने यहां तक आइडिया दे दिया, वो हॉस्टलर का था, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, कि जो फूड हमारे पास वेस्ट जाता है शाम को, मैं इसी से बिजली बना सकता हूं। सोच सकता है? हमारे यहाँ खाना बचता है बाहर। अब वो हॉस्टल का था, वो डेली देखता था।
उसने वहां एक कोट लगा दिया कि जो खाना कल आपने वेस्ट किया है 46 किलो था, अगर आप ये वेस्ट ना करते तो इससे 103 लोगों को खाना खिलाया जा सकता था। अगली बार अपनी खाने में वेस्ट फेंकने से पहले 2 बार सोचिए। 1 महीने के अंदर उसका आइडिया तो फेल चल पड़ा, वो जो वेस्ट आनी वो बंद हो गई। अब वो जो भी वेस्ट आता था उसको यहाँ हिट कर रखने, मैं वेस्ट नहीं, राइट। सो इट्स द वंडरफुल टाइम जहां हम इस चीज को जो है वो ले सकते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू थ्रू अजय जी, विक्रम जी, किसी के पास भी कोई आइडिया है, मेरा ईमेल आईडी इनके पास है, मैं अपना इंक्यूबेशन का वो दे के जाऊंगा एंड आप इसको जो है अपना आइडिया कन्वर्ट करें। 1 बार 2 बार 3 बार फेलियर होगा, करेंगे उसको आगे। सो दिस इज सेक्शन 8 कंपनी। अभी उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें हमने EDC, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल बनाया है। आपके यहाँ भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है EDC सर हमारे यहाँ? नहीं, EDC नहीं है ना। सो दिस इज स्टूडेंट रन बॉडी, ये आइडियाज बच्चों को वही लेके आते हैं। सो वी हैव ए वंडरफुल EDC, ये स्टूडेंट रन बॉडी है, उनका प्रेसिडेंट है, उनका सेक्रेटरी है। यहाँ पर भी वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करेंगे। ये जो IAC के अंदर एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, ये ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता है, लेकिन IAC में आपकी कुछ बंदिशें हैं। वो कहते हैं 16 तारीख से 20 तारीख में ये करो, हमको वही करना है। वो कहते हैं ये 10 एक्टिविटी इंस्टीट्यूशन की ये करो और ये 10 एक्टिविटी हमारी करो, तो हम बाउंड हैं। एक बंदे का मन है शादी पे नहीं जाना, लेकिन वो घर नहीं जाना है, तो ये IAC एक्टिविटी वो है। बट व्हाट इज EDC एक्टिविटी? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, इट्स ए स्टूडेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, विद इन द इंस्टीट्यूट। वो उनके पास जो आइडियाज आते हैं उनको लिखते हैं, बच्चों के साथ शेयर करते हैं अपनी क्लास में, क्योंकि ये तय है कि स्टूडेंट की ज्यादा मानेगा, स्टूडेंट टीचर की कम मानेगा। इट इज एग्रीड। 2 सहेलियां हैं, मैं SD कॉलेज में पढ़ने जा रही हूँ, उसका मन खालसा का वो अब SD कॉलेज है। इट्स ए हार्ड फैक्ट, इट्स ए हार्ड। सो इन दिस वे ये EDC है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है, ये होल हार्टेडली हेल्प करता है। अब ये जैसे हमारे थ्रस्ट एरियाज हैं, व्हाट इज इन दी ऑफर? अब ऐसी ही ऑफर अगले 6 महीने में आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में लाने वाले हैं। एंड आपके यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अमीर है, बहुत पैसा है इनके पास, इंडिपेंडेंट है, बहुत पैसा है। ये 2-3 बार मैंने बहुत ज्यादा पैसा कहा, तो आप लोग हंसे क्यों इतने? मिलता नहीं है, नहीं मिलता है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि मुझे सुबह आप आते गेट के अंदर आए तो आपको बांटना शुरू कर दें? अच्छा ठीक है, आज 4 बार आप आई हैं, आपने कपड़े सुंदर पहने, ठीक है तुम 2000 रुपये ले लो। अच्छा नहीं, आपकी जीन अच्छी है, आपके हेयर कट अच्छा है, तुम 4000। डिड यू पीपल वांट कि ऐसे मिले पैसा? नहीं, इट्स अ वेरी रिच सोसाइटी। आई नो, आई इवन नो द लेट जो आपके फाउंडर थे, मुझे एक बार उनसे मिलने का मौका मिला। व्हेन आई अटेंडेड वन मैरिज एट धारीवाल, द पीपल आर फ्रॉम दैट एरिया। सो व्हाट्स इन द ऑफर? अब आप देख, अब जो बात आ रही थी ना कि कैसे आपका ख्याल रखा जाता है, देयर आर 4 phases. 0 phase, all initials 4, phase 1 3 months, phase 2 3 months, phase 3 3 months. So total 20,000 rupees जो है वो तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने को दिया जाए। अब जो सीड ग्रांट मिलती है या जो फंडिंग मिलती है वो इंडिविजुअल को नहीं मिलेगी, वो डॉक्टर JK शर्मा, डॉक्टर विक्रम, इनको नहीं मिलेगी। दिस विल बी गिवन टू ए कंपनी। So it means what is required to be done before fetching the grant or the seed grant to incorporate a company, अपनी इंडिपेंडेंट कंपनी बनाना। वो प्राइवेट लिमिटेड है, वो LLP है, वो CLP है, वो कैसी भी है। सो इवन कंपनी बनाने के लिए भी ये आइडिया मेरा था और ये बड़ा सक्सेसफुल हुआ। ये कहाँ आया मेरे दिमाग? ये भी आइडिया था मैं जब IIT में था। अब IIT का बच्चा जो है उसको ये तो पता है कि जब एक बार वो IIT में उसमें एडमिशन ले ली तो जब भी उस कैंपस से निकलेगा वो 2-3 जॉब ऑफर तो लेके जाएगा, इससे कम तो वो नहीं मानेगा। It is clear. That's why he is IIT. That's why he went to the IIT. इसका इतना तो इसलिए वो IIT में आया। अब जिन बच्चों के पास अच्छे आइडियाज थे, अब उन्होंने आइडिया सबमिट किए। अब उसके बाद मेरी मजबूरी क्या थी कि मैं उनको सीड ग्रांट या सॉफ्ट लोन तभी दे सकता जब वो कंपनी बनी हो। अब कंपनी कौन बनाएगा? वो। अब वो अपने पेरेंट्स के पास गए, मम्मी पापा हमारा आइडिया बड़ा अच्छा था, यूनिवर्सिटी IIT उसको इंक्यूबेट भी करने को तैयार है और हमको 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन और सीड ग्रांट मिल सकती है, आप हमको 25,000 रुपीज कंपनी बनाने के दे दीजिए। Now what was the reply from the parents?
कोई कंपनी नहीं बनानी, चुपचाप अपनी पढ़ाई कर। पहला ही तेरी पढ़ाई ते बहुत पैसा खर्चा ला रहा है, तेरे पापा ने कर्जा चुक्या होया, और जे मां समझाने लगी तो मां ने तो 4 स्टेप अगे हो चल, वो तो ऐसे लेवल पे ले जाएगी बच्चा। पापा फिर भी कहेंगे अच्छा बेटा ठीक है कोई बात नहीं, सोचते हैं एक बार तेरी मम्मी से बात नहीं, क्योंकि मम्मी तो उस इक्वेशन को ऐसी जगह ले आएगी कि बच्चा माथा पकड़ लेगा कि मैंने ये बात ही क्यों की। एंड इट हैपन टू माय 5-6 स्टूडेंट्स टीम्स। कोई कंपनी नहीं बनानी, चुपचाप पहला तेरी पढ़ाई ते बहुत खर्चा होया वा, चुपचाप अपनी पढ़ाई कर, IIT तन बड़ी मुश्किल दाखला मिलेगा, अपनी पढ़ाई कर, डिग्री कंप्लीट कर, नौकरी कर और साडा साथ दे। वो बच्चा सोचता है मैं तो साथ लेने आया था अब मेरी पीए बुला रही है कि तनुज तुम्हारा वो आइडिया आया था बेटा, कब तुम लोग सर हम सर से बात करेंगे। मैंने कहा ये क्या हुआ, उसको लड़की अपने पीए को पूछा, बोली सर ये वापस ही नहीं आ रहे। अच्छा मैंने कहा सबको 6 जनों को मेरे साथ चाय पे बुलाओ। मैंने बुलाया, सर हमारे पेरेंट्स की रिजर्वेशन है, दे डोंट वांट टू इवन गिव इट 10,000 रुपीज। मैंने कहा अच्छा ओह मैं समझा यार बीमारी तो यहाँ है। आई टुक दिस प्रपोजल टू माई डायरेक्टर, मैंने कहा मुझे आज ही अप्रूवल चाहिए, ये 10 कंपनी को 20,000 रुपया कंपनी इनकॉर्पोरेशन के चार्जेस भी हम फंड करेंगे। अरे जब हम 10 लाख रुपए उनको दे रहे हैं तो क्या हम 20,000 का उनके ऊपर एतबार नहीं कर सकेंगे? वो मुझे कहता है इसमें लफड़ा हो जाएगा, कल को ऑडिट में कोई बने, मैंने अंडरटेकिंग दे दी, अगर कल को ऑडिट इसमें कोई लफड़ा करेगा आई विल पे ऑल मनी फ्रॉम माई पॉकेट। अब डायरेक्टर क्या था, वो तो खुश हो गया, मेरे साइन हो गए, उसने 2 लाख रुपया रिलीज कर दिया। हमने 10 की 10 कंपनियां बनाई एंड उन 10 में से आई एम हैप्पी कि आज 8 कंपनियां जो हैं वो 1-1 करोड़ रुपीस की फंडिंग ले चुकी। This was the way to identify the problem and to provide the solution. हाँ, लेकिन वो 20,000 रुपया देने के साथ साथ हमने उनके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस पे दिया। I, along with my dean Dr. Harpreet, we took them on the phone call, we took them on the online कि सर मैडम आपके बेटे के अंदर बहुत कैलिबर है, उसका आइडिया दुनिया में धाक जमाने वाला है, अगले 6 महीने 2 साल के अंदर वो करोड़पति बन सकता है। आप तो उसको 2 लाख रुपए 6 लाख रुपए की जॉब की बात कर रहे हैं, वो अगले 5 साल में 10 लोगों को जॉब देने वाला है। अच्छा देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ ना, फिर मतलब दवन्नी नहीं लग रही, फिर भी अच्छा देख लीजिए हमने तो इसको IIT में भेजा था, आप इसको बिजनेस करा रहे हैं। अरे भाई हम कौन सा पाप कर रहे हैं, उसको एक एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। दूसरी स्टेज आई हमारे पास, दूसरे साल वाले बच्चे आए, तीसरे साल ये मैं आपको रियल स्टोरी सुना रहा हूँ। दूसरे साल वाले बच्चे आए, तीसरे साल वाले चलो आ गए, इंक्यूबेशन में आ गए, स्टार्टअप भी शुरू कर दिया। अब चौथे साल में उनको मिलना PPO मीन प्री प्लेसमेंट ऑफर। अब बच्चा आता है इंक्यूबेशन मैनेजर के पास, सर मेरा आइडिया थोड़ा ढीला ढाला चल रहा है, तो अभी अगर मैंने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करना पड़ता है कि सर अगर मैंने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर नहीं किया ना तो मेरी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। तो उसने कहा हाँ बताओ क्या कमी है? सर मैं प्लेसमेंट नहीं छोड़ना चाहता, मैं स्टार्टअप छोड़ दूंगा। हमने कहा यार ये तो बनी बनाई मेहनत पे फिर पानी फिरता जा रहा है। भाई 2 साल हमने एक बच्चे को पाला पोसा, उसको कपड़े पहनाए, उसका सब कुछ किया, और आज ये कह रहा मैं तो ये जाऊंगा नहीं। अगेन आई वेंट टू माय डायरेक्टर, बोला अब क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला नहीं तुम जब आओगे ना, तुम इतने इन्वॉल्व हो गए अपने स्टार्टअप्स के साथ, तुमको अपने बच्चे लगते हैं, अपने भाई लगते हैं, तुमको अपनी गर्लफ्रेंड लगती है, बॉयफ्रेंड लगते हैं, मतलब तुम उनके लिए मरते जाते हो, क्या अब क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मुझे 2 साल के लिए डेफर्ड प्लेसमेंट चाहिए। बोला तुम मेरी भी नौकरी खाओगे? मैंने कहा तकलीफ क्या है? बोला किसी IIT में डेफर्ड प्लेसमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं ये तो हम करेंगे, क्या दिक्कत है? बोला प्रोसेस बड़ा लंबा है, पहले डीन कमेटी में जाएगा, मतलब जिसमें भी जाएगा लेके। मैं लड़ा जाके अपनी POG में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, मेरे 2 डीन मेरे कपड़े फाड़ने पे तैयार हो गए। What मिस्टर शर्मा यू आर टॉकिंग रबिश, IIT में ऐसी चीज नहीं होती है, ये है वो है, यहाँ बच्चा आता है अच्छी सी प्लेसमेंट लेके जाता है, आप उसको बिजनेस करवाने के पीछे चले हुए हैं, ये है वो है। मैंने कहा ये होगी बात खत्म, हम फिर भी उसको प्लेसमेंट दिलवाएंगे, वो बिजनेस भी करेगा, फिर भी 2 साल बाद उसकी कंपनी गड्ढे में चली जाएगी, फिर उसको प्लेसमेंट देंगे। लड़ झगड़ के मैंने 2 साल डेफर्ड प्लेसमेंट वाली पॉलिसी भी बना दी। एंड आपको सुन के हैरानी होगी, IIT में जब कोई पॉलिसी बनती है तो पैन IIT में जाती है। हमारी पॉलिसी 2019 में हमने पास करवाई एंड अभी 12 और IIT ने उसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया है।
उनके यहाँ जब विरोध हुआ, अरे आईटी वाले रोपड़ वाले कर रहे हैं तो हमको भी करने दो, हो गया ना ये कि भाई ये मार रहे हैं तो हम भी मारेंगे। एंड इट इज नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल केस। उसके लिए मिनिस्टर ने मुझे जो है वो एप्रिसिएशन लेटर दिया कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच क्यों नहीं? हमने एक बच्चे पे 2 साल मेहनत की है, उसको अब कंटिन्यू करने दो, सिर्फ इसलिए कि चौथे साल में उसको प्लेसमेंट मिलेगी, वो अपना आइडिया छोड़ दे? नहीं। अब वो पॉलिसी क्या थी, आप अपना स्टार्टअप चौथे साल में भी करो, 5वें साल में भी करो, क्योंकि दूसरे साल में तुम आए हो, 5वें साल में तुम्हारे 3 साल हो जाएंगे, तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। ओके, ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, तुम अगर सक्सेसफुल वेंचर बन जाओगे तो अपनी कंपनी चलाओ, नहीं है वापस इंस्टीट्यूट में आओ, हम 2 साल बाद तुमको फिर प्लेसमेंट ऑप्शन देंगे। एक अनसक्सेसफुल केस था उसमें, मुझे लास्ट ईयर इस साल पता चला, उस लड़के को 1.5 गुना सैलरी के ऊपर प्लेसमेंट कंपनी लेके देंगे। अब रहे ना दोनों हाथों में लड्डू। क्यों? वो जो प्लेसमेंट कंपनी आई थी उसने सोचा कि यार अब जो प्लेसमेंट होती है वो तो रॉ को लेते हैं ना, जैसे ये न्यूली फ्रेशर सारे फ्रेशर हैं, उस कंपनी के पास जब ये पता चला कि इस बंदे ने तो अपनी कंपनी चला के छोड़ी हुई है क्योंकि इसके पार्टनर ने इसका साथ नहीं दिया, बाकियों को 16 लाख रुपए का पैकेज मिला, उसको 22,70,000 रुपए का पैकेज, क्योंकि उसको एक कंपनी चलाने का तजर्बा पहले था। सो इट इज सक्सेसफुल। बच्चों को हम कहते हैं बड़े शरारती है ना, तो वो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ताली नहीं किसी ने बजाई, तो भाई अच्छी लगी हाँ तो भी ताली बजाओ। फिर साथ में मैंने ताली बजाने के फायदे बता दिए कि कोई सो रहा होता है तो उठ जाता है। अब 2-4 पीछे होते बैक बेंचर, आप लोग मत समझिए अपने को 2-4 होते शरारती, वो हर बात से मैंने एक बार महसूस किया, 2 बार महसूस किया, तो मैं समझ गया कि अब ये माहौल को खराब करने वाले हैं। तो मैंने कहा अच्छा भाई बताओ ज्यादा ताली कौन बजाते हैं? शादी ब्याह पे आते हैं बधाई ले लीजिए। बाय गॉड उसके बाद 45 मिनट तक ताली तो छोड़िए, उन्होंने छींक नहीं मारी। सो माहौल को लाइवली चाहिए हो ना। मेरा सीवी सर ने पढ़ा था, उसमें एक चीज जो है वो अभी हिडन है, वो मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ। इन 1988 एंड 1989 I worked in the anti-terrorist squad of Punjab Police in the CAT group, जहाँ terrorist activities को नैप करते थे। I have participated in 13 to 14 encounters, 12-15 terrorist भी न्यूट्रलाइज किए होंगे। मेरी टांग में गोली भी लगी थी, वो 2-3 साल अंदर रही, उसको मज़ा आ रहा था अंदर, मेरी टांग के अंदर रही। वो इस जगह पे थी कि वो उसको निकालने के लिए जो है वो हड्डी का थोड़ा सा वो डेवलप होना ज़रूरी था। सो धड़के से बात करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके। सो स्टिल आई एम 100/92 मेरा जो रेशियो है टारगेट हिटिंग का। आपने देखा होगा चंडीगढ़ राइफल एसोसिएशन का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। सो बीइंग ए डायबिटिक, मेरी अभी आई साइड जो है वो कमज़ोर है, बट अभी भी मैं 100 में से अगर निशाने लगाऊंगा तो लास्ट मेरा जो रेशियो थी, जो सक्सेस रेट था, वो 92 था। आई ऑलवेज कैरी ए लोडेड वेपन इन माई व्हीकल, इट इज़ ऑलवेज विद मी, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी कि 1998 तक या 2000 तक मेरा नाम जो है वो टेररिस्टों की हिट लिस्ट में था, कहते हैं। तो जब ऐसी इनपुट आती है इंटेलिजेंस की, तो फिर वो इंटेलिजेंस की हमारे पास आती है, तो हम लोगों को अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए फिर वेपन जो है वो रखना पड़ता है। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ ए क्वालिटी, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ जो शोर वाला बंदा है। एंड मुझे अपना भाषण अभी आप कहेंगे 2 घंटे चलाना, मैं 2 घंटे। सो इसमें जो इसका लाइफ साइकिल है किसी भी प्रोडक्ट का, हमने इंक्यूबेशन पे आए, हमने आइडिया वैल्यूएट किया, हमने पीओसी बनाया, हमने एमवीपी बनाया, हमने प्रोटोटाइप डेवलप किया, एंड उसके बाद हमने टीआरएल लेवल पे वो प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार है, अब उसकी स्टेज आ गई। सो इसमें प्रायोरिटाइज करते हैं हम, जो आइडियाज हैं उसको प्रायोरिटी पे लेते हैं, उसका अपनी डिस्कवरी को प्रायोरिटाइज करते हैं कि उसको हमने किस फेज में जो है वो लेके जाना है। अब उसके बाद इनोवेशन आ जाती है। इनोवेशन मीन्स नई कोई भी खोज। अब यहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन आ जाती है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन, उसकी जड़ में जाते हैं, ये आइडिया और कैसे ज़्यादा डेवलप हो जाएगा।
उसके बाद उसका क्रिटिकल एनालिसिस होता है, इसको वैलिडेट करते हैं मार्केट की नीड के साथ, जस्टिफाई इन्वेस्टमेंट राइट ऊपर। सबसे पहले वैलिडेट विद मार्केट नीड, मार्केट में इसकी जरूरत क्या है। अब आपके चंडीगढ़ में आपने देखा होगा कभी मॉर्निंग में, मैंने एक दो बार देखा, अभी रहता तो रोपड़ में हूँ, बट मैंने देखा सुबह सुबह सफाई करने वाली मशीनें आजकल आ रही हैं, देखा है ना। इट इज नॉट ए इनोवेशन, इट्स ए इनोवेशन। डस्ट नहीं जा रही है, उड़ नहीं रही है, मशीन अपने आप सक कर रही है और अपने आप चला जाता है। तो उसकी पहले वैलिडेशन हुई होगी मार्केट की जरूरत की, देन इसके बाद इसका डेवलपमेंट फेज आया। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है उसको डिजाइन सोल्यूशन में डाला गया होगा, इसकी और ज्यादा डेवलपमेंट की होगी, एंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट का फेज। जब इन्वेस्टिगेट हो गई, मार्केट की वैलिडेशन होगी कि हाँ मार्केट को ये जरूरत है, ये चीज चाहिए, तो हमने इसकी डेवलपमेंट फेज शुरू कर दिया। यहाँ पर फिर डेवलपमेंट आ गई। अब यहाँ पर ये साइकिल यहाँ पर आ गया, बिल्ड मोर, ये बीच में आ गया और इसको ज्यादा अच्छे तरीके से बना। इन बिटवीन जब 3-4 जगह पे वो वैलिडेशन के लिए गया, अवेल्युएशन के लिए गया, तो किसी ने कहा सर आप इसमें अगर ये लगा दो तो ये ऐसा रहेगा, आप इसमें ये सेंसर लगा दो तो 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। आज से 10 साल पहले किसी ने वो सुना था कि आपके पानी की टंकी भर गई तो बाहर पूरे मोहल्ले में पानी बिखरा होता था ना। एंड अभी आपको एक मैडम चीख के बोलती हैं आपकी टंकी का पानी भर गया है, लाइट बंद कर। दिस इज इनोवेशन, राइट। अब वो है क्या? एक सिंपली सेंसर, राइट। वो इलेक्ट्रिसिटी उसको एक करंट से दी जाती है। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, एंड उस सेंसर की अगर आपको मैं कीमत बताऊं तो आप हैरान हो जाए, 3.5 रुपए। हाउ मच? 3.5 रुपए। वो जो सेंसर जो पानी के अंदर डूबता है उसको करंट मिलता है और वो सेंस करके उसको पीछे आवाज दे देता है, एंड वो जो सिग्नल है वो पीछे जाके जब जाता है तो स्पीकर लगा हुआ है, वहां पर अलग अलग तरह की आवाजें आती, कभी आरती बजने शुरू होती, कभी पानी बह रहा है, पानी बंद कीजिए, ये है वो चीज। सो ये मार्केट नीड थी जिसको वैलिडेट किया गया एंड और ज्यादा डेवलपमेंट किया। इसके बाद फिर गो टू मार्केट। अब इसको हम मार्केट में लेके गए, मार्केट में इंडस्ट्री के पास लेके गए, हमने उसका पब्लिक जो डिस्प्ले है वो किया, राइट। टाई का नाम सुना किसी ने? टाई, दैट इज द इंडस एंटरप्राइजेस। टाई बहुत अच्छी संस्था है, आपके चंडीगढ़ चैप्टर उसका बहुत इफेक्टिवली काम करता है, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो टाई में ऐसे पिचिंग सेशन जो है वो होते रहते हैं। सो बच्चे, जैसे ये 3 बच्चे हैं, इनको अलग अलग इंक्यूबेशन के पास या इंस्टीट्यूट के पास इनवाइट आएगा कि जी फलानी यूनिवर्सिटी में, फलानी यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये आइडिया पिचिंग सेशन आ रहा है, तो ये बच्चे वहाँ जाते हैं, अपना आइडिया पिच करते हैं, वो वैलिडेट होता है, वहाँ कई लोग उनको नकार भी देते हैं, वहाँ उनको प्राइज भी मिलता है, प्राइज मिलता है तो हिम्मत और बढ़ती है, एंड वहाँ पर ही कोई एक और अगर मार्केट वेंचर कैपिटल, वो बेटा ये तुमने ये किया हुआ है, एक काम करो इसमें रिवर्स सेंसर लगा के देखो, मिल गया आइडिया। सो दैट इज कॉल्ड मार्केट वैलिडेशन, राइट। सो इसमें मार्केट वैलिडेशन जो है वो चीज आ जाती है। अब इसके बाद प्रोडक्ट एंड बिजनेस रेडी टू लॉन्च। मार्केट वैलिडेशन हो गई, पीओसी बन गई, अब प्रोडक्ट लॉन्च के लिए तैयार हो गया हमारे पास। लॉन्च के लिए फिर जो बड़ी कंपनीज हैं वो लॉन्चिंग एक्टिविटी करते हैं। आपने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियां जब होती हैं तो बड़ी सुंदर सी हीरोइन उल्टे टेढ़े मेढ़े कपड़े डाल के, हीरो साथ में सलमान खान जैसा वो आता है, और उसके बाद वो ऊपर कपड़े से उसका वो उठाते हैं, एंड गाड़ी को जो है वो कर दिया जाता है, लॉन्च कर दिया जाता है। सो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट एंड बिजनेस रेडी टू लॉन्च। अब इसके बाद इन लाइफ इसकी जो ट्रैक परफॉर्मेंस है वो आती है। अब जैसे शुरू में ये इसके आपका जो सैमसंग का जो फोन था वो आप देखते थे कि अगर ज़्यादा देर हम लोग 10 मिनट से ज़्यादा या 5 मिनट से ज़्यादा बात करते थे तो गर्म हो जाता है, एंड उसके साथ साथ हमारा कान भी गर्म हो जाता है। अब ऐसा कोई केस आता है? बिकॉज दे पुट द सेंसर इन दैट, उसके अंदर सेंसर्स उन्होंने लगा दिए, उसके अंदर उन्होंने ला दिए जो कि उस हीट को अंदर ही अब्जॉर्ब कर लेता है और वो उसके प्रोसेसर को भी नहीं गर्म होता। सो ये मार्केट लाइफ है। जब मार्केट में आया तो प्रोडक्ट की वो वैल्यूएशन आई। आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे कि हुंडई कंपनी ने अपनी 2022 में बनने वाली 1700 क्रेटा कारों को वापस बुलाया। सुना है कभी? वो क्यों? क्योंकि मार्केट से ये वैलिडेशन आई कि सर आप जब वो कंपनी ने वो कस्टमर ने पीछे वो फीडबैक दी कि जी जब हम तेल भरवाते हैं और उसके बाद इसका जो लॉक है वो बंद ही नहीं होता है, एंड इसकी जो पेट्रोल बार है वो चढ़ती नहीं है, तो देखा कि हाँ ये 1, 2, 4 और जो अच्छी कंपनीज होती हैं दे डोंट कॉम्प्रोमाइज,
दे कॉल ऑल द व्हीकल्स। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ, सोल्यूशन किया, सेंसर में कमी थी, सेंसर रिप्लेस हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ, चलेगी। सो वो आपके इस साइकिल में है ट्रैक परफॉर्मेंस का। इसके बाद प्रोडक्ट ये डेवलप नेक्स्ट वर्जन, अब उसके बाद उसका नेक्स्ट वर्जन आ जाएगा एंड फिर उसकी एंड ऑफ लाइफ हो जाएगी। नेक्स्ट वर्जन कैसे, हमारी एक कार एक वर्जन हमने लिया, अब उसके अंदर 3-4 वेरिएंट्स हैं। जैसे आजकल थार बड़ी डिमांड में है, 1 साल की वेटिंग है उसमें, राइट। अब पहले जब आई तो ये 4 वेरिएंट थे उसमें, ठीक है ना। अब उस 4 वेरिएंट्स में भी जो है वो 5 वेरिएंट एक और आ गया। सो वो यहाँ पर जो है वो हिसाब से फिर डेवलप होता है उसका नेक्स्ट फेज ऑन द फीडबैक ऑफ कस्टमर। उसको बोलते हैं, एक मार्केट वैलिडेशन होती है, एक कस्टमर वैलिडेशन होती है। लेवल क्या है, अब टेक्नोलॉजी TRL जिसको बोलते हैं, वो क्या है कि आपकी टेक्नोलॉजी जो बनी वो रेडी है, किस लेवल पे है, उसके 9 लेवल्स हैं। 9 लेवल्स को अगले स्लाइड में बात करेंगे। अब जो पहले था, जो TRL शब्द था, ये पहले कहां से आया, 1974 में नासा के अंदर ये आया कि क्या वाकई ये जो टेक्नोलॉजी है वो तैयार है। कल्पना चावला का नाम आपने सुना है, व्हाट हैपेंड टू हर, एंड उससे पहले कई एस्ट्रोनॉट ऐसे ही जा चुकी हैं। लेकिन ये कितनी देर बाद, कल्पना चावला जी का जब एक्सीडेंट हुआ उससे पहले अमेरिका मोर देन 200 टाइम्स तक अपने जो रॉकेट्स जो हैं वो स्पेस में भेज चुका था। बट गलती तो गलती है, उसकी गुंजाइश नहीं है। सो नासा ने जो है इसको टेक्नोलॉजी रेडनेस लेवल को जो है वो शुरू किया, और ये मेजर क्या करता है, मैच्योरिटी लेवल ऑफ ए टेक्नोलॉजी थ्रू इट्स रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट फेज प्रोग्रेशन। डेवलपमेंट अगेन डेवलपमेंट, उसको रिगरस डेवलपमेंट करते हैं कि ये नुक्स तो नहीं आ सकता, ये नुक्स तो नहीं आ सकता। अब 1 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर एक वो चंदा मामा पे जाने वाला जो एक हमारा एक वो चंद्रयान, वो फेल हो गया। वो सिवन साहब बेचारे रो रहे थे प्राइम मिनिस्टर के गले रख के। अब इतना ज्यादा देश का 2200 करोड़ का नुकसान कर दिया, रोना तो था ही। प्राइम मिनिस्टर ने भी था, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और लेंगे, टैक्स पेयर की मनी है, और टैक्स ले लेंगे लोगों से, राइट। सो इसके बाद इसके 3 लेवल इसको बोलते हैं, एक तो TRL टेक्नोलॉजी लेवल, एक MRL मैन्युफैक्चरर रेडी लेवल, कि फैक्ट्री में जो इसका रेडी हो रहा है क्या वो लेवल तैयार है, बिल्कुल उसकी टेस्टिंग हो गई है। एंड तीसरा इसके साथ IRL, ये इन्वेस्टमेंट रेडी लेवल। पहला टेक्नोलॉजी रेडी लेवल, फिर मैन्युफैक्चरिंग रेडी लेवल, और तीसरा फिर इन्वेस्टमेंट MRL और IRL। क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, टेक्नोलॉजी लेवल पे तैयार हो गया तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, कोई तो बनाएगा ना उसको। अब इन्होंने, सर ने, मैंने एक डिवाइस जो है वो मिलकर बना दी। अब हमारे घर में तो कोई फैक्ट्री नहीं है, वो कहाँ जाएगी, मैन्युफैक्चरर के पास। सो MRL लेवल पे वो जाएगी। जब MRL पे जाएगी तो अब वो उसके ऊपर 2000 करोड़ रुपया उसके जो मैन्युफैक्चर करने के लिए, सॉरी तैयार करने के लिए लगेगा। हु विल इन्वेस्ट, देन इन्वेस्टर्स विल कम कि आई विल इन्वेस्ट 2000 करोड़ रुपीज, इतने मेरा इतना हिस्सा रहेगा, ये बैंक लेगा। अगर बैंक से लोन लेना तो बैंक को भी उसकी प्रोजेक्शन दिखानी पड़ती है। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, जिसको हम बोलते हैं DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो बैंक को जाती है। सो दिस इज TRL, देन MRL एंड IRL। जो मैं आप यहाँ अपने इंक्यूबेटर में जो आइडियाज बनाएंगे, जब वो डेवलप होगा तो वो TRL लेवल 4 माना जाता है। अगर TRL लेवल 4 है, गवर्नमेंट उसको पिच करने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। लेकिन अगर हम इसको 3 फेजेस में लें तो ये साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, मेडिकल साइंसेस, और ये नीचे इसके फेज दिए हुए। पहला और दूसरा फेज जो है वो बेसिक रिसर्च, आइडिया आया, हमने उस पर सर्च की, काम किया, रिसर्च की, काम किया, रिसर्च की, काम किया, वो पहला दूसरा लेवल उसी में चला जाता है। तीसरे लेवल में उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, जिसको POC बोलते हैं। जो लोग स्टार्टअप इंक्यूबेशन में जाएंगे जब, तो POC शब्द बड़ी बार उनको सुनने को मिलेगा। तुम्हारी POC तैयार है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, कि जो तुम्हारा कंसेप्ट है उसका प्रूफ, उसका भी प्रूफ चाहिए उसको, तो क्या वो प्रूफ तैयार है? तो थर्ड फेज में ये PRF जो है, POC जो तैयार है। चौथे फेज में TRL लेवल में लैब डेमोन्स्ट्रेशन, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए लैब में उसकी डेमोन्स्ट्रेशन, लैब में उसका डेमो दिया जाता है। क्या लैब में उसका डेमो चलता है? फिर उसके बाद कंपोनेंट एंड सिस्टम वैलिडेशन, के लेबोरेटरी के अंदर जो सिस्टम हमने उसमें लगाया है, जो सेंसर हमने उसमें लगाया है, जो वायरिंग हमने उसमें की है, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो 10 घंटे 8 घंटे रेगुलरली वो मशीन ऑपरेट हो रही है तो क्या उसकी वायरिंग हीट तो नहीं हो रही है, वो मशीन हीट तो नहीं हो रही है। ये सारे चीजें अभी उसमें चल रही हैं लैब के अंदर।
TRL5 लैब स्केल वैलिडेशन अर्ली प्रोटोटाइप। अब लैब के अंदर वो चीज गया, अब उसका प्रोटोटाइप डेवलप करना शुरू किया। एक रोबोट हमने बनाया, वो रोबोट को हमने पीछे से रिमोट से घुमाया, उसने हाथ उल्टा किया, सीधा किया, या बाजू पकड़ी या थैला उठाया। लेकिन जैसे उसने मान लीजिए हमने को रोबोट तैयार करने, उसको हमने कहा भाई रोबोट को कमांड दी भाई तुमने थैला उठाना है। अब उसने थैला उठा तो लिया, लेकिन उठा के गाड़ी में नहीं रख रहा ऐसे करके, या थैला उसने उठा तो लिया, अब हम मांग रहे तो वो दे नहीं रहा, तो इसका मतलब फिर पीओसी प्रॉपर नहीं ना हुई, तो वो उसको बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग। सो वहां पर फिर उसका प्रोटोटाइप प्रॉपर वे में तैयार करने के लिए फिर वो अभी तक लैब के लेवल पे है यहाँ पर। सो लैब स्केल वैलिडेशन, लेबोरेटरी स्केल, सिमिलर सिस्टम वैलिडेशन इन रेलेवेंट। अब सिमिलर सिस्टम एवैल्यूएशन होती है रेलेवेंट उसमें। अगर वैसा ही कोई माहौल और है, कोई फैक्ट्री और है, तो हम उनके साथ वो टाई अप करते हैं कि सर ये हमने रोबोट बनाया था, लेकिन ये बेचारा थैला पकड़ तो लेता है, छोड़ता नहीं। वो कहते अच्छा भाई हमारे पास ले आओ। जैसे एक मिस्त्री है, कहते गाड़ी को बोला हाँ मेरे पास ले आओ, मैं ले आऊँगा। तो उनके साथ हम वैलिडेशन करते हैं, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी हमको देते हैं। उनको भी ये खुशी होती है कि हमारा कंपटीटर यहाँ है, तो वो हम उसको वैलिडेट करके दें। तो वो इसको बोलते हैं इंडस्ट्री कनेक्ट। सो उस केस में आपका यहाँ पर ये 5th फेज में यहाँ पर ये आ जाता है। 6th फेज में क्या है, प्रोटोटाइप डिमोन्स्ट्रेशन। जो मैंने अभी बताया कि रोबोट बनाया, उसको उसकी कमांड थी कि भाई थैला उठाना है, उठा के गाड़ी में रख देना है, ठीक है। प्रोटोटाइप की डेमो देना है उसका, राइट। लेकिन अब हुआ क्या कि उसने थैला पकड़ना तो सीख लिया, सेंसर ने काम करना भी कर दिया, उसने थैला उठा भी लिया, 5 किलो की कैपेसिटी थी, 6 किलो उठा दिया, लेकिन वहां ले जाके उसने ऐसे पकड़ा हुआ भाई रख दे, बोलो मैं नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि उसका सेंसर वो काम नहीं कर रहा था। जो कमांड हमने उसको दी थी, जो रेस्पिरेटरी कमांड उसको दी थी, उसने उसको काम नहीं किया। सो दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप का डेमो। अभी वो मार्केट में नहीं है, कहीं भी नहीं है, अभी तो प्रोटोटाइप बन रहा है। अब इसके बाद 7 में आ जाएगा कैपेसिटी। यहां पर इसका पायलट सिस्टम जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर, ये पायलट है जी हमारा, ये मशीन हूबहू ऐसे ही बनेगी। दिस इज कॉल्ड पायलट प्रोजेक्ट, इसको पायलटिंग बोलते हैं। इसके बाद फुल स्केल, सिमिलर, इसके साथ साथ ही। और अगर सॉफ्टवेयर में हम आ जाएंगे तो इसको इंस्टॉल करना, रन करना, वैल्यूएट करना और उसके रिजल्ट देखना। ये टेक्नोलॉजी TRL 7 में आ जाता है। 8 में क्या है, कैपेसिटी वैलिडेटेड ओवर रेंज ऑफ पार्ट्स। अब हमने कैपेसिटी टेस्ट कर ली, अब उसको हमने कई जगह पे उसको जो है वो किया। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ के एक बच्चों ने एक हेलमेट बनाया था, उड़ी पिक्चर देखी आप लोगों ने, उड़ी में एक टैक्टिकल हेलमेट पहना जाता है, देखा है? वो हेलमेट अभी इंडिया में नहीं बनता। वो हमको 11,75,000 रुपए का एक हेलमेट इंडिया को USA से लेना, और एक बार में शर्त है कि हम 1000 से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। वैल्यू बनानी ना अपनी, तो उसकी वो कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये थी कि हम सिमिलर लाइंस के ऊपर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाएंगे, चोरी नहीं करेंगे, उससे ज्यादा कर लो ठीक है। सो हमारे यहाँ के 2 स्टूडेंट्स ने उसको जो है वो डेवलप करना शुरू किया 4 साल पहले। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर, IIT रोबोट के बच्चे हैं। आज की डेट में वो जो हेलमेट है, अब उस हेलमेट का क्या है, 7 कमांडोज हैं, उन्होंने हेलमेट पहना, सारे ही लोकल एरिया नेटवर्क पे हैं, GPRS सिस्टम उनका लगा हुआ है। उनको एक चॉपर ने ऊपर से चंडी मंदिर से उड़ा और आपकी ग्राउंड में उतार दिया। उनको नहीं पता है कहां पर है। सो दे विल मेक ए स्विच। उनको GPRS सिस्टम जो है वो बता देगा कि हम लोग इस समय सेक्टर 32 SD कॉलेज में हैं। उनको ये भी बता दिया जाएगा कि यहाँ आपके फ्रेंड्स एंड फोज कौन से, आपके दुश्मन कौन है, आपके दोस्त कौन से हैं। नाउ उनको एक बिल्डिंग के अंदर टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करना है। सो दे ऑल विल हैव द लेजर एक्टिवेटेड बैंड्स। वो एक तरफ देखेंगे, जिसको एक को नजर आ गया, से इनको नजर आ गया, सो ही विल पुश हियर एंड फोकस कर देगा। बाकी सबको एक सिग्नल चला जाएगा कि जो टेररिस्ट है वो उस बिल्डिंग में है। दे विल गो, दे विल मेक द एक्सरसाइज, टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज किया, वापस आ गए। बड़ी खुशी की बात है, तालियां बजानी चाहिए अपने उसके लिए। नो, व्हाट इज द सेकंड साइड ऑफ द कॉइन? वो लोग कमजोर थोड़ी हैं। ये हेलमेट सारा कुछ हमको बता रहा था। सो व्हाट इज द सेकंड साइड ऑफ द कॉइन? अगर हमारा कोई भी कमांडो उन टेररिस्टों दुश्मन के हाथ में आ गया, तो एक कमांड से वो यहाँ का सारा प्लान जो है वो वॉश कर देगा टेररिस्ट, सॉरी कमांडो, ठीक है, ताकि दुश्मन को हमारी प्लान का पता न चले। अब दुश्मन ने पीछे से आगे पकड़ लिया तो वो स्विच दबाने का तो टाइम ही नहीं मिला। तो व्हाट इज द सेकंड कमांड? वो यहाँ पर आई रिफ्लेक्टर एक ग्लास लगा हुआ था। वो इतना सा ग्लास जो है वो 55-60 हजार रुपए का आता है। एंड वो आपकी आईज की पुतली के 100वें हिस्से की
जो एक्टिविटी है उसको नोटिस करके पीछे ट्रांसमिट कर। तो वो ग्लास यहां लगा हुआ है। सो अगर आपका हाथ भी पीछे बांक लिया तो आपने, अगर वो आपकी पुतली जो है अगर 30 सेकंड के अंदर नहीं झलकी या आगे पीछे नहीं हुई तो पीछे कमांड चली जाएगी कि आप अब दुश्मन के हाथ में हैं या आपको मार दिया गया। आपकी पुतली आगे पीछे नहीं हो रही तो वो ऑटो स्टेज में पीछे जाके डाटा बैलिश हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ तो उसकी एक अलाइनमेंट जो है बैकपैक के साथ वो आपकी हार्ट बीट और आपकी पल्स के साथ अटैच कर, कि अगर दुश्मन ने, टेररिस्ट ने आपको गोली मार दी, जैसे ही आपकी हार्ट बीट बंद हुई तो वो सारे का सारा डाटा वेट। टेक्नोलॉजी इस लेवल तक पहुंची, ठीक है। इसी को ये यहां पर आएगी कैपेसिटी। तो इस हेलमेट को हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर जीओसी अपनी कमांड आए थे जो जंगी मंदिर से, वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे कहां लेके गए उसको, लेह लद्दाख कश्मीर में, जहां साल में 3 महीने 4 महीने बर्फ पड़ती है। वहां पर उसकी टेस्टिंग हुई कि इतनी ठंड में जो है अगर ये हेलमेट वहां चलाएंगे तो काम करेगा, चल गया। उसके बाद भीषण गर्मी में जैसलमेर में जहां 52 डिग्री 53 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो चला जाता है, वहां पर उसकी टेस्टिंग की तो वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग टेस्टिंग जो है वो हो जाती है। अब व्हाट इज सेक्टर 9, कैपेबिलिटी वैलिडेटेड ऑन फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, सब कुछ हो गया। एंड फेज 4 का जो ट्रायल यहाँ पर मेडिकल साइंस में था वो भी हो गया। सो अब ये कमर्शियलाइजेशन के लिए तैयार है। इसके 3 फेजेस थे, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन, कि अब ये मार्केट में कमर्शियलाइज करने के लिए तैयार है। इसको बोलते हैं टेक ट्रांसफर। इन्होंने अपने 2 साथियों के साथ लैब के अंदर एक प्रोडक्ट तैयार किया। अब या तो ये 200 करोड़ की खुद फैक्ट्री लगाएंगे, ये फैक्ट्री लगाने के मूड में नहीं है क्योंकि तो रिसर्चर है, इनको तो ऐसा एक पुर्जा बनाया, ये उसका टीटी करेंगे, उसको बोलते हैं टीटी, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल को टीटी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना। ये उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। अजय सर लेने वाले हैं, इनका बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अब ये कहेंगे मुझे 200 करोड़ रुपया चाहिए, वो कहेगा नहीं ये तो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो बातचीत नेगोशिएशन टेबल पे आके 125 करोड़ रुपए में तय हो जाएगी। सो ये अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे। उसके अंदर भी 3 झोल हैं, फुल्ली ट्रांसफर, एक्सक्लूसिवली। इनका ये जो प्रोडक्ट था ये फुल्ली इनको ट्रांसफर हो गया। दूसरी केस में विद रॉयल्टी, कि मैं आपको ट्रांसफर तो कर रहा हूँ 125 करोड़ में, लेकिन आप जितने भी पीस बनाएंगे 25,000 रुपया पर पीस, मैं आपको 125 करोड़ में मैं ट्रांसफर भी करूंगा, लेकिन आपकी कंपनी में मेरा 5% हिस्सा भी रहेगा। सो दीज आर 3 और 4 फेजेस ऑफ द टेक ट्रांसफर। So this is all about TRL.